हर भारतीय के मन में उत्सव है क्योंकि यह आजादी का अमृत महोत्सव है। हर भारतीय के मन में उत्सव है क्योंकि यह आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव ने ली अंगड़ाई है, ये तो आजादी की बधाई है, ये तो आजादी की बधाई है। I would like to extend my heartfelt greetings to all of the students present over here in the online mode. This is to inform you all, as we all know that we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. So today we have decided to go for a virtual celebration, and to celebrate the same, we will be having two performances. One will be performed by Arohan Rautrai and the another will be performed by Virampika Das. Let us first talk about Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the central government of India to commemorate 75 years of India's independence. Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the glorious history of Indian people, culture and achievements. It includes a series of events all over the country. The Mahotsav is dedicated to the people of our country. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav commenced on 12th of March 2021. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Mahotsav on 12th March 2021 and it will continue till 15th of August 2023, the day we will complete 75 years of our independence. The Azadi Mahotsav involves a country-wide campaign that focuses on citizen participation. One of the main motives of the Mahotsav is that every citizen of India should know about the untold incidents of the freedom struggle. Many activities will be conducted at the school level also, and to commemorate the same, today we all have gathered here in the virtual mode to celebrate the same. Azadi Ka Amrit Mahotsav marks the 75th anniversary of India's independence, which is celebrated nationwide. This nectar festival of freedom means the nectar of new ideas. For the students, I would like to tell, nectar का मतलब शहद होता है. So the nectar festival of freedom, मतलब इसे हम एक शहद के त्योहार के तौर पर मना रहे हैं, which means the nectar of new ideas, new resolutions, the nectar of self-reliance. The celebration of Amrit Mahotsav was started by Gandhi Ashram in Ahmedabad in the 75th year of India's independence and the 91st anniversary of the Dandi March. The Amrit Mahotsav of Independence was inaugurated by giving the green light to the Dandi March by our respected Prime Minister Damodar Das Narendra Modi. So चलिए आगे मिलकर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आओ मिलकर एक नव पैगाम दें, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। हम सब और आप सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव को मनाते हैं। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आरोहन राउतराय यहाँ अपनी इस विषय पर जो अपने विचार हैं वो प्रस्तुत करें। आरोहन। जी मैम। शुरू कीजिए बेटा। सरहद पार गोली खाके जब टूट जाए मेरे सांसें, सरहद पार गोली खाके जब टूट जाए मेरे सांसें, मुझे पहुंचा देना मेरे बूढ़ी माँ के पास, मुझे पहुंचा देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़े शौक था उसे मुझे घोड़े पर बिठाने का, मुझे दूल्हा बनाने का। तो वहीं करना मेरे यारों, मुझे घोड़े पर बिठाना और पूरे गांव घुमाना, मुझे घोड़े पर बिठाना और पूरे गांव घुमाना। मेरे माँ से कहना कि तेरा बेटा आज दूल्हा बनकर आया है। दुल्हन नहीं लाया तो क्या, दुल्हन नहीं लाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे पिताजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, मेरे पिताजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी। वह कहा करते थे, तिरंगा लहरा के आना या उसमें लिपट के आना, परंतु दुश्मन को पीठ नहीं दिखाना। मैंने उनकी बात रख ली, कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी अपने सीने में खाई। मेरे छोटे भाई उस सर जाकर कहना, क्या रखेगा वो मेरा वादा, क्या रखेगा वो मेरा वादा। एक भाई गया तो दूसरा भी आएगा। मेरे छोटी बहन उससे जाकर कहना कि मुझे याद था उसका तोहफा,
परंतु एक अजीब इत्तेफाक हो गया। राखी से पहले भाई राख हो गया। राखी से पहले भाई राख हो गया। लेकिन एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरे मौत का मातम ना करना, क्योंकि ये मैंने शिद्दत खुद से है चाही। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। नमस्कार, मेरा नाम आरोहन रोत्रे है और मैं कक्षा 6B का छात्र आज आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं, जिन्होंने देश को आजादी देने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, जिनको स्वयं महात्मा गांधी जी ने ही देशभक्तों का देशभक्त कहलाया, जिन्होंने यह अद्भुत नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा रचाया। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 जनवरी 1897 में कटक के एक छोटे से जिले में उनकी जन्म हुआ था। जानकीनाथ बोस तथा श्रीमती पार्वती दत्त जी को उनका 9वां बेटा सौभाग्य हुआ था, जिनका नाम उन दोनों ने सुभाष चंद्र बोस रखा। सुभाष चंद्र बोस जी ने द प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, जिसे आज स्टीवर्ट हाई स्कूल कहा जाता है, वहां से अपनी पढ़ाई शुरू की। बाद में वह रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बेहद शौक था और जिसके कारण वह मैट्रिक एग्जाम में दूसरे स्थान पर रहे। जब वह मात्र 16 साल के थे, वह श्री रामकृष्ण परमहंस देव तथा स्वामी विवेकानंद जी के सिखाए गए पाठ और ज्ञान को पढ़ने में दिलचस्पियां रखते थे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत तब पैदा हुई जब उन्हें स्कूल से, कॉलेज से तब निकाला गया था जब उन्होंने केवल एक अंग्रेज अध्यापक तथा एक भारतीय बच्चे की लड़ाई को देख रहे थे अन्य बच्चों के साथ। इसके बाद से ही उनके मन में आजादी भर गया। उन्हें भारत को आजाद देखना था, भारत को एक आजाद पक्षी की तरह उड़ते देखना था। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, आईसीएस में 4वें स्थान पर भी रहे, परंतु इतना अच्छा नौकरी मिलने के बाद भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें किसी भी अंग्रेज अधिकारी के अंतर्गत काम करना मंजूर नहीं था। उन्होंने आईसीएस को छोड़ा और भारत आकर नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। नेशनल कांग्रेस में भर्ती होने के बाद उन्होंने स्वराज जैसे कई अनोखे अखबारें लिखी, जिनको कि भारत में सभी लोगों को भारत की अहम और उसकी आजादी के बारे में पता करने का कोशिश किया। इसी के साथ साथ उन्होंने आजादी के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने आजाद हिंद फौज भी बनाया, जिसकी सलाह उन्होंने नाजी पार्टी और जापान से भी सलाह मशवरा लाया था। परंतु बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत सारी क्रांति करने के बावजूद अगस्त 18 को उनकी मौत एक प्लेन क्रैश से हुई। भले ही वो अब हम सबके बीच में ना हो, परंतु फिर भी हम सब उन पे नाज करते हैं। हम सबको उनकी गाथाएं याद है और आज भी हर व्यक्ति जब भी आजादी की बात हो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अवश्य बोलते हैं। तभी तो उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस यानी कि ब्रेवरी दिवस भी कहा गया है। तो दोस्तों, इस छोटे से बातों से हमें यह पता चलता है कि आजादी किसी एक का योगदान नहीं था, बल्कि आजादी को प्राप्त होने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी थी, जिन्हें आज भी हम लोग नहीं जानते हैं। उन्हीं के खातिर हम लोग यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब आरोहन, बहुत खूब। एक बार चाहूंगी कि सभी बच्चे अपना ऑडियो ऑन करके आरोहन के लिए तालियां जरूर बजाएं। बहुत बड़े, बहुत बड़े। आरोहन की बातों को विराम देते हुए
पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, कह दो उन्हें सीने पर जो जख्म है, कह दो उन्हें सीने पर जो जख्म है, सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी विरंबिका को। विरंबिका यहाँ देशभक्ति पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत गाकर जो है वो अपनी देशभक्ति व्यक्त करना चाहती हैं। विरंबिका। यस मैम। जी शुरू कीजिए बेटा। यस मैम। सुप्रभात, मैं निरंबिका दास केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कटक कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, की धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। धन्यवाद। धन्यवाद विरंबिका, धन्यवाद बहुत बहुत। फिर से चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी एक बार अपना ऑडियो ऑन करके विरंबिका का हौसला जरूर बढ़ाएं। बहुत खूब विरंबिका। बहुत बहुत धन्यवाद आरोहण और विरंबिका दोनों को भी। सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं एयरपोर्ट लगा रही हूँ, तुम बार बार लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है। फरिश्ते हो तुम वतन के, तुम्हें सजदा हमारा है, तुम्हें सजदा हमारा है। टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन खून में तो देश का नमक होना जरूरी है ना। तो हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, जब हम देशभक्ति की बातें करते हैं और उस गीत को सुनते हैं जो देशभक्ति से जुड़ा होता है, तो हम सबका ही खून जो है वो उबलने लगता है और हमें भी ऐसा मन होता है कि हम भी सीमा पे जाएं और वहां सरहद पे लड़के जाकर जो है वो लड़े और अपनी देशभक्ति जो है वो दिखाएं। पर केवल सरहद पे जाकर खड़े होकर सीने पे गोली खाने से ही जो है वो देशभक्ति नहीं व्यक्त की जा सकती है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे रास्ते हैं, जैसे अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं,
तो आप सब भी अपनी देशभक्ति व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम सब मिलकर रहें और हम सब अच्छे इंसान बने, क्योंकि दुनिया में वही देश सबसे ज्यादा मजबूत होता है जिसके नागरिक अपने देश में रहने वाले अपने साथी नागरिकों से और अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप सब आपस में प्यार प्रेम से रहिए, भाईचारा बनाए रखिए, अच्छे से रहिए, सारे त्योहारों को खुशी और उल्लास से मनाइए, किसी तरह का भेदभाव जाति धर्म के आधार पर ना कीजिए। इसी को भी अगर हम कितनी ही चीजों को भी अपना लेंगे ना बेटा, तो भी हमारा देश जो है वो बहुत सी बुलंदियां छू सकता है और आसमान छू सकता है, और हम भी एक दिन, वैसे तो भारत देश अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति की तरह जो है वो निखर कर सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को भी अपनाने लगे तो हम फिर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आप और हम सब मिलकर इस छोटी सी सेलिब्रेशन को जो है वो अब विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने जो है वो समय निकाला और इस ऑनलाइन सेलिब्रेशन में जो है वो आपने अपना समय दिया।